Hello guys, today we see the next topic in this chapter, inheritance and variation. In it we knows the point is deviation from Mendelian ratio. There is a intragenic and intergenic inheritance are there. We already discussed about the intragenic inheritance. Here today we discuss about the intergenic inheritance. In that the second example is the polygenic inheritance. The first example is the pleiotropy. We discuss in that the sickle cell anemia disease examples is there, and here we explain the another examples of this one, that is called the polygenic inheritance. This one is also called as the qualitative inheritance, सॉरी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. क्या कहते हैं इसको? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. क्यों कहते हैं इसमें क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस? क्योंकि इस क्रॉस के अंदर में ये होता है कि डोमिनेंसी जो होती है कैरेक्टर की, जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन आपके ऑफस्प्रिंग्स कॉम्बिनेशन में दिखाई देंगे उतना ही उसका कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा. इसीलिए इसको अपन बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. वो डिपेंड करता है कि कौन से एलिल्स, डोमिनेंट एलिल्स, कितने डोमिनेंट एलिल्स उस कॉम्बिनेशन में है, डायहाइब्रिड के हो या ट्रायहाइब्रिड एग्जाम्पल के अंदर में हो, उस हिसाब से उसका डार्कनेस कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होता है. इसलिए इसको अपन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं. So as per this one, how we define the term polygenic inheritance? Polygenic inheritance का मतलब ये है, it is defined as, polygenic inheritance is defined as the characters inherited or determined by the more genes. What we say here the character or single character determined by two or more pair of genes, that is called as the polygenic inheritance. Now in that one, as their expressions will depend upon the quantity of that the genes are there or alleles are there, as there is a more genes are there, that is means more quantity of the alleles are there, that is called as the additive or cumulative effect, and such type of effect is known as the additive effect or cumulative effect. Hence this process is known as polygenic inheritance, or polygyny is there, and the process is called as polygenic inheritance, or the effect is known as the additive effect or cumulative effect of that the genes are there. इसमें ऐसा होता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन की संख्या आएंगी उसके हिसाब से उसका इफेक्ट दिखाई देता है, इसलिए इसको एडिटिव इफेक्ट कहते हैं या तो क्युमुलेटिव इफेक्ट भी कहते हैं. क्लियर दिस पॉइंट? डेफिनेशन ऑफ दिस वन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स टू और मोर पेयर ऑफ जीन्स. टू पॉली मेनी जीन्स लिखा है यहाँ पे, टू और मोर पेयर ऑफ जीन्स, they are responsible for a inheritance of single character, then that is called as the polygenic inheritance. As there is two or more genes are responsible for a single character, that shows their effect, so that is called additive effect or the cumulative effect or the quantitative inheritance are there. This one is the similar terms are there, used one by others are there at different stages or different levels are there. अच्छा पता नहीं है, इस तरीके से आपको ये सब यहाँ पे डिसाइड किया गया है. Then in this one, what are the examples of this one is there? कौन से एग्जाम्पल इसके अंदर पर पढ़ते हैं वो देखेंगे. आप पहले देखो कि ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर में ह्यूमन कैरेक्टर्स कुछ होते हैं. इसमें हाइट कैरेक्टर जो है वो क्युमुलेटिव इफेक्ट दर्शाता है, स्किन कलर जो है ये भी क्युमुलेटिव, और इंटेलिजेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग ये भी क्युमुलेटिव इफेक्ट के तौर पर दिखाई देते हैं. नो इसके मुताबिक अपने को एक दो चार एग्जाम्पल इसमें और एक्सप्लेन करा के प्रूव करना है. इसलिए अपन ने डायहाइब्रिड या ट्रायहाइब्रिड रेशियो, क्योंकि टू और मोर ऐसे कहा था अपन ने, टू और मोर जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, इसलिए डायहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं या ट्रायहाइब्रिड. मतलब एक से ज़्यादा जीन की कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है. मतलब दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा की, एक से नहीं दो या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा की कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है. इसके लिए अगर अपन ने इसमें बीट कर्नेल कलर का एग्जाम्पल लेके डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो आपको रेशो मिलेगा 1:4:6:4:1 instead of 3:1 of the monohybrid or 9:3:3:1 of the dihybrid cross of Mendel's ratio. इसलिए इसको कहते हैं अपन कि डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशो, क्योंकि वही क्रॉस कर रहे हैं मगर रेशो जो आ रहा है मेंडेल के सरी का नहीं आ रहा है. मेंडेल ने जैसा आया था 9:3:3:1 वो नहीं आ रहा है. इसके अलावा कहीं यहाँ पे दूसरा रेशो आपको ऑब्टेन हो रहा है, तो इसलिए इसको अपन क्युमुलेटिव इफेक्ट भी कहते हैं या पॉलीजेनिक इफेक्ट. बीट कर्नेल कलर में हो गया. दैट वन इज गिवन बाय द H. Nielsen and A. Hell. We express this one is in
detail below, but before that the trihybrid cross or trihybrid ratios are there. 1:6:15:20:15:15:6:1 is in the skin color of the human. You know, actually as we observe the skin color of the humans are there, they shows the different shades are there, and that shades are not is in a one or two sets are there, that one is in somewhat variations into the different combinations like this manner. जैसे कि ये ट्राइहाइब्रिड आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अलग अलग तरीके के आपको सेट्स दिखाई देते हैं, तो इस हिसाब से उसको भी अपन फाइनली एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा इधर. बट बिफोर दैट वी एक्सप्लेन द रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इन द व्हीट कर्नेल कलर, that one is given by the H. Nielsen and Ehre. Now what they shows, Nielsen and Ehre shows that the wheat kernel color is actually as we those feed जो अपन खाते हैं गेहूँ, वो गेहूँ का कलर देखे तो एक इंटरमीडिएट कलर का गेहूँ है वो. तो ये गेहूँ का कलर जो आया है ये ऐसे आया है कि कहीं और अपन ने दो तरीके के गेहूँ को, एक रेड कलर के या व्हाइट कलर के गेहूँ को क्रॉस करा के जो मिला है वो अपना इंटरमीडिएट कलर का गेहूँ मिला है. तो ये जो इंटरमीडिएट है दैट डिपेंड ऑन द appearance of the capital genes in the F1 generation is there. तो ऐसा एक हाइब्रिड अपन यूज कर रहे हैं. इसी को अगर अपन ने सेल्फिंग या इनबर्डिंग के तौर पर किए तो इसमें वेरियस कॉम्बिनेशन मिलते हैं इज इन द रेशियो ऑफ 1:4:6:4:1. इस कॉम्बिनेशन में आपको रेशियो अलग अलग मिलेगा. इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एग्जांपल अगर अपन लेते हैं व्हीट कर्नेल कलर का, तो व्हीट कर्नेल कलर में ये हुआ है कि दिस कलर इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द डोमिनेंट जीन्स आर देयर फॉर रेडनेस एंड रिसेसिव जीन्स फॉर द whiteness is there, and those we feed nowadays today that having the intermediate colors are there, that having the combination of capital A, small a, capital B, small b. So in that way for a pure red color there is a two genes are responsible, that is capital A and capital B onto the different locus are there. And white kernel color, this one is also to the similar homozygous chromosome is in a form of contrasting, that is small a and small b there. Means for a red color what we taken here, the genotype capital A and capital B because it one is completely dark red in color, and white color it is completely white in color, small a, small b. As per this one, as we cross these parents, red kernel wheat and the white kernel wheat is there, that time we shows the combination like this manner. जैसे कि जीनोटाइप आपने देखे हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका हाइब्रिड आया है. जब इसी हाइब्रिड को अपन नेक्स्ट जनरेशन के लिए एज पर द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट अगर फॉलो करते हैं तो इट गिव्स अस 4 different combinations of the gametes are there, like that of capital A, small b, small a, small b, small a, small a, capital B, small a, small b. ऐसे ही दूसरी फीमेल साइड और मेल साइड, जैसे अपन ने यहाँ नोटिंग नहीं किया है, यहाँ नोट कर सकते हो आप मेल साइड या तो फीमेल साइड. ये मेल साइड है तो ये फीमेल साइड है. इस ढंग से आप तो मेल और फीमेल का नोटिफिकेशन करना हो सकता है. तो ये आप इस तरीके से, ये मेल साइड के हुए, ये फीमेल साइड. आइदर इट वन इज द बाइसेक्सुअल वन, दे इनब्रीड देमसेल्व्स और सेल्फिंग देमसेल्व्स, दोनों चीज़ें उसमें हो सकती है. इनब्रीडिंग के लिए आपको 2 पेरेंट लेना पड़ेगा और सेल्फिंग अगर बाइसेक्सुअल तो उसी के उससे में वो हो जाएगा. क्रॉसिंग, इस क्रॉसिंग के मुताबिक जैसे इन लोगों का मतलब इन गैमेट्स का कॉम्बिनेशन इन गैमेट्स के साथ में होने की चांस पॉसिबिलिटी इस प्रोपोर्शन में आती है. तो इस प्रोपोर्शन में जैसे मेंडल में अपन ने देखे थे कि राउंड येलो 9 था, तो राउंड ग्रीन 3 था, देन येलो रिंकल्ड वो 3 था, तो रिंकल्ड ग्रीन वो 1 था. ऐसे जो कॉम्बिनेशन 9:3:3:1 आया था अपने को. इन दैट द सेम वे हियर देयर इज अ रेशियो इज 1:4:6:4:1. 1 is what? 1 is the complete red color is there having all 4 dominant genes are there. सभी के सभी चारों डोमिनेंट जीन जिसके अंदर होते हैं वो कम्प्लीटली आपको इसमें एक दिखेगा. ये 1 वाली पोजीशन है एक्चुअली, ये 1 अपन यहाँ पे नोटिंग करते हैं. तो ये इसके अलावा कोई किसी जगह पे भी आपको चारों के चारों एलील्स या जीन्स डोमिनेंट नहीं दिखाई देंगे. तो ये 1 हो गया. ऐसे आप 3 का कॉम्बिनेशन वाले देखो तो 4 का कॉम्बिनेशन, 4 का हो गया, 3 के कॉम्बिनेशन जहाँ 3 डोमिनेंट जीन है, जैसे कि यहाँ डोमिनेंट जीन है, यहाँ 3 डोमिनेंट जीन है, यहाँ 3 डोमिनेंट जीन है और कहीं यहाँ 3 डोमिनेंट, मतलब 1 2 3 ये 4 हो गया, ये 1 हो गया डोमिनेंट वाले आगे. फिर अपन लेते हैं कि 2 डोमिनेंट वाले जीन कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे 2 डोमिनेंट वाला जीन है, यहाँ पे 2 डोमिनेंट वाला जीन है, यहाँ पे 2 डोमिनेंट वाला जीन है,
यहाँ पे 2 डोमिनेंट वाला जीन है, यहाँ पे 2 डोमिनेंट वाला जीन है, यहाँ पे 2 डोमिनेंट वाला जीन है। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 वाला ये कॉम्बिनेशन हो गया, जिसमें इंटरमीडिएट का जन्म हुआ है यहाँ पे F1 में। वही कॉम्बिनेशन आपको F2 के अंदर में 6 फॉर्म में आ गया है, मतलब रेशो के अंदर में 6 कॉम्बिनेशन इसके आ गए। आप अगर अब हो गया 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, एक डोमिनेंट यहाँ पे है, ऐसे अगर देखते हैं अपन तो ये एक हो गया, एक वाला इसको अपन क्रॉस करते हैं राउंड में, एक वाला ये एक हो गया, दो के कॉम्बिनेशन में यहाँ सॉरी स्मॉल भी चाहिए, इसलिए वाला तो भी स्मॉल भी, मतलब ये एक हो गया, क्रॉस भी करते हैं इसको भी, कितने हो गए 1 2 3 और एक सिंगल वाला ये एक हो गया, राइट 1 2 3 4, ये 4 हो गए आपके एक सिंगल डोमिनेंट वाला। मतलब ये कहाँ जाएगा, ये थोड़ा सा व्हाइट कलर की तरफ झुकेगा, मतलब व्हाइट नहीं कंप्लीटली, मगर व्हाइट से थोड़ा सा अगर अपन रेड मिला देते तो जैसे कलर आता है उस हिसाब से वो 4 टाइप हो गए, और एक कंप्लीटली आप लोगों को व्हाइट मिलेगा। आपको इसको स्टार के रूप में लिख सकते हैं अपन, ऐसे मिल गया अपने को, यानी इस हिसाब से वो कॉम्बिनेशन आप लोगों को डायहाइब्रिड क्रॉस में व्हीट कर्नेल कलर के रेशो में 1:4:6:4:1, मतलब 1 क्या हो गया, कंप्लीट डार्क कलर लाइक दैट ऑफ ए पैरेंट। 4 क्या हो गया, जो कि 3 डोमिनेंट होने की वजह से किसके तरफ झुकेंगे ज्यादा, आप लोगों को रेड कलर की तरफ, मतलब थोड़ा सा लाइट रेड आ गया। और बाद में जो 6 है उसमें आधे डोमिनेंट है आधे रिसेसिव, मतलब 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव, इसी ढंग के F1 से लेके आएंगे। तो वो इंटरमीडिएट, जैसे 2 कलर मिला है अपन इक्वल क्वांटिटी में, तो जो कलर मिलेंगे आपको उसको अपन इंटरमीडिएट बोलते हैं, तो इस इंटरमीडिएट में आएगा। और तीसरा जो है, अभी कंप्लीट रिसेसिव वाला अपन छोड़ देंगे, 2 का कॉम्बिनेशन हो गया 2 डोमिनेंट का। अभी किसी इसमें एक ही डोमिनेंट आ गया, जैसे कि अपन यहाँ देखिए A आ गया, बाकी स्मॉल है, यहाँ B आ गया, ऐसे इधर A आ गया, यहाँ B, एक सिंगल डोमिनेंट, आइदर इट वन इज A और B, कोई भी आए, ए आए या बी आए, मगर वो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट किसको फॉलो करेगा, रेड को फॉलो करेगा, और रेसेसिव किसको फॉलो करेगा, व्हाइट को फॉलो करेगा। जहां रेसेसिव ज्यादा है तो झुकाव किधर होगा, व्हाइट की तरफ होगा। सिंगल डोमिनेंट है तो थोड़ा सा, अगर ज्यादा व्हाइट में थोड़ा सा रेड डाल दिए तो जैसे कलर आता है अपना, तो इस हिसाब से वो 4 कॉम्बिनेशन मिल गए। और एक कॉम्बिनेशन प्योरली कोई भी डोमिनेंट नहीं, जीरो डोमिनेंसी, देयर इज ए टोटल पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन इज recessive is there that are completely like that of a recessive parent like white color. In that way the ratio is obtained as a 1:4:6:1:4:6:4:1 in this the wheat kernel color. Means what here we prove here the polygenic inheritance. कैसे, poly means many genes, मोर देन 2 पेयर ऑफ जीन्स बोले थे अपन ने, या 2 पेयर ले लिया अपन ने। तो ये 2 पेयर ऑफ जीन्स जहाँ की एक कैरेक्टर को, कौन सा कैरेक्टर है, व्हीट के कर्नेल का, व्हीट के कर्नेल कलर वाला कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे जहाँ ज़्यादा डोमिनेंसी, ज़्यादा रेड, जहाँ ज़्यादा रेसेसिव वो व्हाइट, इस हिसाब से आपको ये कॉम्बिनेशन मिल गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको एक्सप्लेन किया। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि वो ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल लेते हैं अपन, दैट वन इज गिवन बाय डेवनपोर्ट एंड डेवनपोर्ट। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने दे दिया अपने को ह्यूमन स्किन कलर में। तो अपन इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, अपन ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ तक आते हैं, तो इस हिसाब से अपन इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या था ह्यूमन स्किन कलर में, ह्यूमन स्किन कलर में भी 2 मेल और फीमेल पेरेंट रहेंगे। जैसे आप लोगों को यूएस कंट्री में मालूम है कि दोनों स्किन कोड कलर वाले पीपल आपको दिखाई देते हैं, वहाँ पे गोरे भी है और काले भी है। तो इसी हिसाब से काले और गोरों का अगर अपन ने मैरिज कर दिए तो क्या कॉम्बिनेशन आपको F1 में आ सकता है और क्या कॉम्बिनेशन आपको F2 में आ सकता है। जैसे पेरेंट्स के तौर पर अपन पहले लेते हैं ब्लैक कलर, ब्लैक स्किन कलर क्रॉस विद दैट ऑफ ए व्हाइट स्किन कलर। रेड नहीं लिखेंगे अपन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाइट स्किन कलर। ऐसे 2 स्किन कलर अपन यहाँ पे लेते हैं, ब्लैक और व्हाइट। तो आप लोगों को मालूम है मोस्टली ब्लैक कलर बोले तो निग्रोज, मतलब अफ्रीकन कंट्री के माइग्रेटेड पीपल है वहाँ पे, और व्हाइट कलर बोले तो यूरोपियन कंट्री के माइग्रेटेड पीपल है यहाँ पे। मतलब ऐसे ही 2 कलर के पीपल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, और इनमें कभी मैरिज हुआ होगा। तो जैसे बड़े आदमी का नाम है अपन लेंगे नहीं यहाँ पे, तो ऐसे अगर इसमें मैरिज होता है तो क्या होता कि इंटरमीडिएट कलर वाला
बच्चा पैदा होता है इनको, ना व्हाइट होता है ना ब्लैक होता है। जैसे अपन बोलते हैं कि गेहुआ कलर, मतलब अपने शरीर का इंटरमीडिएट कंपाउंड वाला, इंटरमीडिएट कलर वाला बच्चा पैदा हो सकता है। तो अपने आपको ये पता है कि स्किन कलर के लिए मोर देन 2 और ऐसे कहा था अपन पॉलीजन में, स्किन कलर इज वन ऑफ द कैरेक्टर, फॉर दैट द पर्पज 3 पेयर्स ऑफ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल। कितने पेयर लगेंगे आपको यहाँ पे 3, इसलिए अपन ने लिखा था ट्राहाइब्रिड क्रॉस और ट्राहाइब्रिड रेशो, इसको बोलते 3 अपने को पेयर लगेंगे। तो इस हिसाब से जो इंटरमीडिएट वाला आता है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ऐसा लेते हैं। मतलब डोमिनेंस में पेयर क्या आएंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और रेसिसिव में क्या आएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल बी। इस हिसाब से अगर इसका जीनोटाइप लिखे अपन ने प्योरली ब्लैक और प्योरली व्हाइट पीपल का, तो आप लोगों को जीनोटाइप ये मिलेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और इसी हिसाब से अपन व्हाइट कलर वाले को लेंगे तो इसका आएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। इस हिसाब से आप लोगों को जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्योंकि 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है कलर कॉम्बिनेशन के लिए, 3 पेयर्स होना, इसलिए अपन पेयर फॉर्म में लिखे, इधर भी पेयर फॉर्म में लिखे हैं। तो जहाँ कंप्लीट रिसेसिव है वो मतलब स्मॉल लेटर से दर्शाए गए हैं, वो व्हाइट कलर को फॉलो करते हैं, और कैपिटल लेटर वाले ब्लैक कलर को फॉलो करते हैं। इस हिसाब से अगर गैमेट्स देखे जाए तो इसमें अपन देखते हैं कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसा ही गैमेट्स आएगा। इसमें भी दूसरी तरफ अगर गैमेट देखते हैं अपन व्हाइट की तरफ, तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसे पेरेंट पॉपुलेशन के गैमेट्स आएंगे आपको। और इसी को अगर अपन क्रॉस करते हैं और F1 हाइब्रिड बना लेते हैं तो क्या आएगा F1 हाइब्रिड में आप लोगों को यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, मैं साथ में दूसरा भी लिख देता हूँ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये कॉम्बिनेशन आपको इंटरमीडिएट वाला आएगा। जैसे कि अपन इंडियन पीपल में देखते हैं गेहुआ कलर बोले तो थोड़ा सा गौर वर्ण बोलते हैं अपने इधर, और थोड़ा सा अगर ब्लैकिश हो गया तो वो ब्लैक कलर वाला मतलब गोज टुवर्ड द दिस वन इज मतलब निग्रोसाइड्स और अफ्रीकन कंट्री पीपल्स आते हैं, बट वी आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ दिस वन। For that the purpose, the skin color is actually depends on the secretion of melanin in the skin. स्किन में जो मेलानिन होता है वो स्किन का कलर को डिटरमाइन करता है। तो इस हिसाब से वो जो है मेलानिन फॉर्मेशन का, बट इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, किसके प्रेजेंस में होती है प्रोसेस, ये सनलाइट के प्रोसेस में होते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि कुछ दिन अपन अगर घर के अंदर रहे तो अपना चेहरा थोड़ा सा फेयर दिखने लगता है, और धूप में अगर ज़्यादा घूमते रहे तो अपने अनफेयरनेस भी आता है अपने ऊपर। तो इसी का मतलब ये है कि जब कभी ऐसा इफेक्ट होता है लाइट का स्किन के ऊपर, मतलब स्किन के ऊपर लाइट रेज डायरेक्टली गिरते हैं, तो वहाँ के सेल जो होते हैं मेलानिन को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इस हिसाब से मेलानिन का अगर परसेंटेज आपके स्किन में ज़्यादा होता है तो आपको ब्लैकिश कलर आता है, और मेलानिन का कलर अगर कम होता है तो उसमें आपको वाइटिश कलर आता है, थोड़ा सा फेयर कलर आता है। तो आप सोचते हो कि अच्छा है कि अपन धूप में ना जाए, छाँव में रहे, बट ये एक ड्रॉबैक है इसमें कि तुम्हारी जितनी ज़्यादा वाइट स्किन होंगी, मतलब जिसके स्किन में मेलानिन कम होगा, वो स्किन एक्चुअली ससेप्टेबल टू द स्किन डिसीजेस के लिए वो ससेप्टेबल होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे फॉरेनर्स होते हैं वो समुद्र किनारे जैसे ठंडकाले में आके धूप से नहाते हैं, धूप का नहाना बोलते हैं उसको, बोलते हैं अपन सनबाथ बोलते हैं। तो वो धूप का नहाना बोले तो धूप को अपने स्किन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं ताकि उनके स्किन डिसीजेस अवॉइड हो सके, क्योंकि स्किन में मेलानिन ज़्यादा से ज़्यादा बन पाए, और बनने के बाद में वो स्किन डिसीजेस को थोड़ा सा कम कर सके। इस हिसाब से होता है। मगर जेनेटिकल वो हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर, तो ये हो गया ये जेनेटिकल फैक्टर जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। आप सभी को पता है कि कोई भी जीन्स अपने आप में एक्टिव नहीं होता जब तक उसको स्टिमुलेशन नहीं मिलता है। इसी हिसाब से जो लाइट रेज आता है वो लाइट रेज बोले तो उसके लिए स्टिमुलेशन होता है, वो मेलानिन सिंथेसिस के लिए काम करता है। तो इसी हिसाब से ये ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल बी। हाँ, जब इसी को आप अगर सेल्फिंग करोगे या इनब्रीडिंग करोगे तो आप लोगों को मालूम है मोनोहाइब्रिड में आपके कितने गैमेट गिरे थे, हाइब्रिड में 2 गैमेट गिरे थे, 2 टाइप के गैमेट, और डाइहाइब्रिड में आपके कितने गिरे थे, उसी हिसाब से 4 गैमेट गिरे थे। तो ट्राइहाइब्रिड में आपने 2 जा 4 हो गए, 4 2 जा और 8, मतलब कितने गैमेट गिरेंगे इसके, एक ट्राइहाइब्रिड में 8 गैमेट गिरेंगे, और 8 गैमेट का कॉम्बिनेशन कितना आएगा आपको 64 में आएगा। अब इस 64 कॉम्बिनेशन में जो रेशो आता है, मैं अभी चार्ट नहीं बनाऊंगा, तो गैमेट्स जो आते हैं 8 गैमेट आते हैं, और 8 गैमेट में जो 64 का कॉम्बिनेशन, जैसे चाहे तो अपन यहाँ गैमेट बना भी सकते हैं इसको, जैसे मैं बना देता हूँ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी,
जिस ए को दोनों के साथ में एक बार, इस ए को दोनों के साथ में एक बार, जैसे ए एक गैमेट हो गया तो दूसरा कैपिटल ए, कैपिटल बी ये आएगा और स्मॉल सी आएगा। तीसरा ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये आएगा ये कैपिटल ए, इसके साथ दो बार हो गया। फिर ये कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और चौथा आएगा कैपिटल ए, सेकंड में कैपिटल बी और स्मॉल सी। ऐसे चार एक साइड में हो गए कैपिटल को लेकर, और स्मॉल को लेकर होते हैं स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। तीसरे में आता है इधर स्मॉल ए का कॉम्बिनेशन हो गया दोनों साथ साथ, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी सॉरी कैपिटल सी, हाँ स्मॉल सी। अभी ए वाला कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, अपन इस बी के साथ में लेते हैं स्मॉल ए एक बार आएगा, कैपिटल बी खत्म हो गया, यहाँ पे अपन ने दोनों जगह ले लिया। अभी स्मॉल बी कैपिटल सी, और तीसरा आता स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कॉम्बिनेशन ये साइड में आएंगे फीमेल साइड में, तो मेल साइड में 8 आएंगे। 8 का अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं अपन, या अपन पनेट स्क्वायर में डालते हैं उसको, तो आपको 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? 64 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको? 64। और ये 64 में से आप लोगों को पता है कि रेशो कैसा आता है, इसका रेशो आता है 1:6:15:20:15:15:6:6। ये रेशो आता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को देखना है कि स्किन कलर जो डार्कनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल लेटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 6 के 6 अगर कैपिटल लेटर आते हैं एक साथ में, तो उसका टोटल ब्लैकिश स्किन कलर का कॉम्बिनेशन आएगा, तो ये है 1%, जैसे कि वो पेरेंट लाइक है। बाकी 6 में देखते हैं, इसमें अपन शो करते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन, जब इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ में होता है मेल फीमेल के गैमेट के साथ में, तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ 5 लोग साथ में आते हैं, मतलब 5 कैपिटल लेटर साथ में आते हैं। आइदर दिस वन इज फ्रॉम ए साइड, बी साइड और सी साइड, किसी भी साइड से हो सकता है। तो सॉरी 6 कॉम्बिनेशन आते हैं, तो ये 5 कैपिटल लेटर वाले 6 कॉम्बिनेशन आएंगे, मतलब थोड़ा डार्कनेस उसका कम हो जाएगा, मतलब दैट डायलेट टुवर्ड्स द डार्कर वन, ये डार्कर की तरफ जाएगा। फिर ऐसे 15 आते हैं जिस जगह पे 4 कॉम्बिनेशन कैपिटल के होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जहाँ 2 ए भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। मतलब इस ढंग से आप लोगों को 3 पेयर में से कोई भी 2 का भी या 3 का भी या सभी का भी हो सकता है, मतलब 4 ही रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ए रहेगा, बी रहेगा, सी भी रह सकता है, ए रहेगा, बी भी रहेगा, सी रहेगा, या तो बी भी रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। मतलब वो कितने आएंगे आप लोगों को? 15 कॉम्बिनेशन आएंगे। तो ये थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट की तरफ, या तो थोड़ा ज़्यादा ब्लैक था कम ब्लैक हो गया, उससे भी थोड़ा कम ब्लैक हो गया, उससे भी थोड़ा कम ब्लैक, मतलब थोड़ा फेयरनेस इसमें आ जाएगा, जो 15 कॉम्बिनेशन में आता है। और इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी आणि स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल सी, ये 3 वाला कॉम्बिनेशन बोलते हैं अपन उसको। 1 2 3 कैपिटल, ऐसे 3 वाले 20 कॉम्बिनेशन आएंगे। और जहाँ 3 कैपिटल लेटर है, आइदर ए हो या बी हो या सी हो, कुछ भी हो, ए भी हो सकता है, बी स्मॉल हो सकता है, सी कैपिटल सी स्मॉल हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो, ऐसे 20 कॉम्बिनेशन आएंगे आपको। अगर चेकर बोर्ड बनाए तो आपको यहाँ पे शो कर सकते हैं अपन, जगह नहीं थोड़ी सी अपन, इसलिए इसको नहीं करेंगे, मगर आप लोग करके देखना है। अगर आता है नहीं आता है मेरे को बोलना है बाद में कि सर ये नहीं आया, तो मैं इसको प्रूव करके बता दूंगा आप लोगों को। तो ये 20 कॉम्बिनेशन आते हैं जो इंटरमीडिएट में आते हैं। उसके बाद में ये क्या हो गए, ना कंप्लीट रेड ना कंप्लीट व्हाइट, दोनों का बीच वाला जो कलर है वो आएगा। जिसके बाद में 15 कैसे आते हैं, यहाँ पे कैपिटल वाला नंबर था, यहाँ पे स्मॉल वाला नंबर आएगा। 15 क्या आएगा हुआ, जैसे 5 वाले हो गए थे इधर 3 के बाद में 2 वाले आएंगे, तो 2 कैपिटल रहेंगे यहाँ पे, ऐसे 15 कॉम्बिनेशन रहेंगे, 15 कॉम्बिनेशन रहेंगे। जहाँ पे एक ही कैपिटल रहेगा, आइदर ए आइदर बी और आइदर सी, ऐसे 6 कॉम्बिनेशन आएंगे, जो टोटली किस तरफ चले जाएंगे, वो फेयर वाले की तरफ चले जाएंगे, व्हाइट वाले की तरफ। और जहाँ कोई भी कैपिटल गैमेट नहीं है, वहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन आएगा, उसको अपन बोलते हैं पैरेंटल व्हाइट, तो ये आएगा। इस हिसाब से वो रेशो आता है। 64 में से 1 कंप्लीट ब्लैक, 6 टुवर्ड्स द ब्लैक, 15 जस्ट फेयर देन द ब्लैक इज देयर, एंड 20 इंटरमीडिएट,
15 just towards the fair, 6 more towards the fairs and 1 totally fair white. ऐसा combination आपको यहाँ पे दिखाई देगा. This one is actually the examples of polygenic inheritance. We explain here the two examples, wheat kernel color example, and another is the skin coat color or the skin color of the human. Okay, thanks guys.